enrollment number and everything. Assalamu alaikum. Let's start the class. Student, I hope everyone can see the book also. Are you able to see the book? Yes, Miss. Okay. Student, I'm sharing the book because I want you to read it rather than focusing on slides and मिस वो slide में तो सिर्फ heading लिखी हुई है और आगे तो detail लिखी हुई नहीं है. So all the headings and all the detail, everything is in the book. आपको उसी को देख के चलना है. I shared the topics which are included in your midterm examination so that you may easily see or prepare yourself for your midterm examination. ठीक है, टॉपिक्स भी मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिए हैं. 2 of the topics आर इन द पोजिशन ऑफ होल्ड. वो इसलिए क्योंकि फिर आप उसकी अपनी ऑलरेडी असाइनमेंट्स और टास्क प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. नाउ एवरीवन दोज हु आर इन द क्लास, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट योर नेम एंड enrollment number in the chat. Everyone write your name and enrollment number in the chat. आमना अपने नेम के साथ बेटा एनरोलमेंट नंबर ऐड करें. Amna is here. Amna Sheikh, Amina Sheikh. Amina Sheikh. Better write down your enrollment number also. I can see only your name. Your enrollment number is not mentioned. इसमें लिखें वरना फिर अटेंडेंस में आपका enrollment number नहीं आएगा. Alright. अपने नेम को एडिट करें. And all those who are in the waiting room, tell them to add their name. अभी ये waiting से leave करें, अपना name add करें, edit करें enrollment number and then rejoin. Okay, let's start the topic which we have to discuss today. It's basically the review class related to the topic. कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ आई या जो चीज पूछनी है. अभी तक if anyone is worried about any topic, मिस नहीं समझ आ रहा, कोई पूछना है. Is there any question? Do you have any question? Students, do you have any question? Hello बच्चों, can you hear me? Yes. ओके, इफ यू हेयर मी, किसी ने कुछ खोल के देखा है, कुछ पढ़ाई की है, कोई चीज ऐसी, कोई क्वेश्चन जो पूछना है? नो क्वेश्चन. इज देयर एनी क्वेश्चन?
Okay, students, let's start the topic which we have to review today and which we have to revise a little bit. Things which will be new today, वो उसको भी देख लेते हैं. We discuss about the introduction of entrepreneurship. Last class में हमने opportunities, ideas इसको cover किया था आपकी क्लास में. Yes. किया था ना, कि जिसमें हमने बात की थी कि हम कैसे कैसे ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, हम ये चीज हमने देखी थी. इकोनॉमिक फोर्स क्या है, सोशल फोर्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है और पॉलिटिकल क्या है. अच्छा, मैं अपने टाइम पीरियड में ना इस चीज को इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल समटाइम्स गड़बड़ हो जाता था. तो मैं इसको आई यूज टू रिमेम्बर दीज टर्मिनोलॉजीज विद सेप्ट. जैसे सितंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है SEPT. सो S फॉर सोशल, E फॉर इकोनॉमिक, and P for political and T for technology. So all those whose birthday month is September, they can easily remember के ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम ये इसको याद कर सकते हैं. ठीक है, सो वी कंप्लीट दिस चैप्टर एंड नाउ टुडे वी हैव टू टॉक अबाउट द अदर 2-3 पॉइंट्स. ठीक है, जो हमारा इसी स्टेज के आगे के पॉइंट्स है उसको हम कवर करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ so far these points are clear. अब हम feasibility analysis पे जा रहे हैं. ठीक है, what is feasibility analysis and why feasibility analysis is important. Okay, this is a little bit story mentioned in the book कि किस तरीके से किसी बच्चे ने, किसी MBA का स्टूडेंट है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया and then that particular person उसका बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट हुआ, वो पूरी स्टोरी है. ठीक है, ब्रिंगिंग इट इनटू द शॉर्ट, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिबिलिटी एनालिसिस है क्या and why it's important. The most important thing, feasibility analysis is one of that thing where we see our business is basically, can we launch it or not? Like, is it that thing कि जिसको हम in a business हम लेकर आए या हम उसको रहने दें. ठीक है, सो फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम सारे 4 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं. वी recognize business idea. Here is the highlighted word. Test the feasibility of the idea. Write business plan and launch the business. This is the complete feasibility analysis process. ठीक है, 4 points पर हम चले जाते हैं. Now, when we are talking about feasibility analysis, क्या अचानक से हमें घर पे हम सोए हुए होंगे और हमें वही आ जाएगी? नो, इट्स नॉट लाइक दिस कि हम सोए हुए और हमें वही आ जाए कि हाँ भाई ये आप ये वाला बिजनेस कर लें. until and unless some of the people who believes that कि हम अस्तखारा करते हैं और हमें फिर उसके बाद पता चलता है कि हमें ये बिजनेस करना है या नहीं करना. So that is totally a different thing. But on the realistic approach, there are few things on which we do feasibility analysis. And as you are among those students जो research करते हैं आगे जाके, तो फिजिबिलिटी एनालिसिस के लिए भी हमें रिसर्च करनी होती है. रिसर्च इन अ 2 फॉर्म. One is primary research, another one is secondary research. ठीक है, रिसर्च मैथोडोलॉजी आप लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों, और इट्स इन 5th-6th सेमेस्टर. हेलो स्टूडेंट्स, Yes. आप लोगों ने रिसर्च मैथोडोलॉजी पढ़ लिया है या इट्स इन 5th-6th सेमेस्टर? No, फातिमा, आवाज नहीं आई बेटा. मैम आई थिंक नहीं पढ़ी. अभी नहीं पढ़ा है, ओके गुड. ठीक है, हम खुद से इसको बता देते हैं. ठीक है, रिसर्च हम करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है. वन इज प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी. अच्छा, प्राइमरी कौन सी होती है? जो हम खुद से करते हैं. आई डू इट बाय माई सेल्फ. एंड अच्छा, इस देर आर अदर टाइप ऑफ रिसर्च ऑल्सो. पीपल डू से दैट प्राइमरी सेकेंडरी के बाद टर्शरी भी होती है और ये वाली भी होती है, वो वाली भी होती है. बट बेसिकली फॉर बिजनेस वी
just think about two categories. One is primary and another one is secondary. Primary is completely that research which is 100% done by us. हमने खुद देखा, खुद जाके मार्केट में ऑब्जर्व किया, हमने खुद लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व किया, हमने देर आर मेनी अदर थिंग्स जो हमने देखा, किसी से मशवरा किया, किसी से पूछा, और हमें नजर आया यस दिस इज द गैप, दिस इज द नीड, तो हम उस बिजनेस में आते हैं। वो प्राइमरी रिसर्च होती है। एंड देन वी हैव द सेकेंड ऑप्शन दैट इज सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च कोई और करता है हमारे बिहाफ पे, कोई और कर रहा होता है। या तो हम वी जस्ट टेक द डाटा एज इट इज एंड वी थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव स्टूडेंट्स ऑफ BS मैथ्स इन आवर क्लास, एंड दे नो दैट फॉर स्टैट्स एंड अदर टाइप ऑफ थिंग, स्टेट बैंक का डाटा जो उनके वेबसाइट पर है, that data is considered as authentic source। ठीक है, बट ऑब्वियसली वो हमने खुद तो नहीं किया, हमें किसी और के थ्रू मिला है, तो वी कंसिडर इट एज अ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इसी तरीके से इफ आई सी द एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनी ऑफ द कंपनी, वो एनुअल रिपोर्ट भी अपलोड हुई होती है, दैट that annual report also talks about the things। मिसाल के तौर पे शान ने अपनी annual report upload की, and then Shan says that last year we sell more masala jaat rather than salt। तो आई हैव टू बिलीव ऑन दैट रिपोर्ट कि हाँ, शान फूड अगर कह रहा है कि उसने नमक कम बेचा है एंड देन मोर सोल्ड प्रोडक्ट्स आर मसाला जात, तो फिर हम देखते हैं हाँ यार, ये कह रहा है मसाला बिका है। फिर ऑन द अदर हैंड वी सी द डेटा ऑफ मेहरान मसाला। मेहरान मसाला भी यही कह रहा है कि अगर हम डेटा देखें तो मसालों में सबसे ज्यादा बिरयानी मसाला बिका है, सेकंड पे कोरमा मसाला बिका है, एंड बाकी ऑल द अदर मसाला जाज आर दोज जो कि कम बिके हैं। स्पेशली उसमें फिर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास ऐसा भी रिसर्च होती है, लाइक इन द मंथ ऑफ रमजान विच ब्रांड इज सोल्ड मोर, और उसमें भी हम पर्टिकुलरली चेक कर रहे हैं कि पकौड़ा मसाला किसने बेचा। रमजान का हमें पता है ना, हमारी ऑब्जर्वेशन है रमजान में पकौड़ा मसाला बिकता है। अब हमने एनालिसिस करने के लिए कंपैरिजन किया कि कौन सी प्रोडक्ट बिकी है, और उसमें वो कह रहे हैं पकौड़ा मसाला, तो कौन सी ब्रांड का बिका है। ठीक है, सो ऑल दैट थिंग वो हमने ये देखा। अच्छा, अब इसमें हमने वी सी द डाटा फ्रॉम स्टेट बैंक, ये रिजल्ट आया है, और उसके बाद फिर हम उस पर काम करते हैं। अच्छा, समटाइम्स सम ऑफ द पीपल से नहीं यार, मैं तो किसी के डाटा पे बिलीव ही नहीं करता, आई विल डू माई सेल्फ। ओके, हाउ कैन यू कंडक्ट सेंसस ऑफ योर एरिया? आपको उसमें हर हाल में गवर्नमेंट के डाटा पे बिलीव करना पड़ेगा। इफ एनी ऑफ यू इज लिविंग इन मलीर कैंट, गेटेड कम्युनिटी है, रिस्ट्रिक्ट गेटेड कम्युनिटी है, यानी उसमें मैं ये वो कोई भी अंदर नहीं आ सकता अनटिल एंड अनलेस वी टेक द परमिशन। हमें अंदर वाले कहें कि ये हमारे गेस्ट हैं, तो वहां से हमें एक परमिशन स्लिप आती है। क्या हम मलीर कैंट के अंदर का भी ये सेंसस कर सकते हैं कि मलीर कैंट में इतने मर्द, इतनी औरतें, इतने बुजुर्ग, इतने बच्चे रहते हैं? नहीं, उसके लिए भी हमें किसी ना किसी से डाटा लेना पड़ेगा। हमें हो सकता है मलीर कैंट की सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़े दैट वी नीड द डाटा ऑफ योर एरिया एंड वी वांट टू सी कौन कौन यहाँ पे रह रहा है। वी कैन इवन चेक द डाटा इन दैट वे कि आज जो गार्ड है वो हमें बताए कि पूरे दिन में हाउ मेनी गेस्ट अराइव, एंड दोज हु वर हेयर एज अ गेस्ट, मलीर कैंट के गेट पे उन्होंने चेक करवाया, तो उसमें से कितने लोग मेल आए, कितनी फैमिलीज के साथ आए, और कितने लोग ऐसे आए जो कि नॉन रेजिडेंट मलीर कैंट के थे मगर वो फोर्सेस से उनका ताल्लुक था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग इट? यानी अगर मैं मलीर कैंट के गार्ड से पूरा डाटा लूं और फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाऊं कि इतने मर्द थे, इतनी औरतें थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हमारी मिक्स रिसर्च कहलाएगी। लेकिन अभी हम मिक्स पे नहीं जा रहे,
वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च, ठीक है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च हम कर जब रहे हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी ब्रांड की फिजिबिलिटी हम देखते हैं इन 4 जगहों पे आ रही है या नहीं आ रही है। प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी, ठीक है, इंडस्ट्री मार्केट फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ठीक। नाउ many of you discuss different proposal with me, propose their business venture। किसी ने मुझे फ्लावर्स दिखाए, किसी ने मुझे कहा मैं इसमें मेहंदी लगाऊंगी, किसी ने मुझे कहा कि मैं इसमें ज्वेलरी बना लूंगी। some of you said miss I am going to teach some people, some of the people said that I am good in stats। यानी मैं अपनी सर्विसेज सेल करूंगी इन दिस फील्ड। अब आप ये तो सारी चीजें कर रहे हैं। नाउ यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड एंड यू क्रिएटेड समथिंग, एक बिजनेस फॉर्म में आ गया, ठीक है। लेकिन उसको एनालाइज भी तो करोगे, प्रोडक्ट या सर्विस फिजिबिलिटी। इज इट नीड ऑफ टाइम? डू पीपल नीड दैट थिंग? मैथ्स की बच्ची जो मुझे कहती है मैं एसपीएसएस रन करूंगी, यस। हु इज द टारगेट ऑडियंस? दोज हु आर डूइंग रिसर्च, those companies who are doing research, they need this type of application। SPSS का कोई एक्सपर्ट है वो करेगा। बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट बहुत ज्यादा पावर बीआई पे काम करते हैं, वो कहते हैं हम पावर बीआई की सर्विस दे सकते हैं। सो फिजिबिलिटी हम देख रहे हैं, इफ यू आर एक्सपर्ट ऑफ एनी सर्विस आप उस पर काम कर सकते हो। देर इज अ गर्ल इन योर क्लास हु सेड दैट आई अप्लाई मेहंदी वेरी नाइसली, सो if she open a small venture for 4-5 days बिफोर ईद कि मैं अपनी सर्विस दूंगी फॉर मेहंदी, तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या नीड है। हाँ नीड है, ठीक है। एंड देन हु इज द टारगेट मार्केट, कौन किसको लगाएगी वो उसको देखना पड़ेगा। देन ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी, क्या अकेली जाके लगा लेगी? हाँ स्मॉल स्केल पे लगा लेगी, बट इफ शी इज प्लानिंग टू हैव प्रॉपर टेंट वेंट लगा के 4-5 लड़कियां बिठाए तो शी मैंडेटरी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन एक पूरी टीम चाहिए, कौन लोग काम करेंगे कौन नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देन द थर्ड पॉइंट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अब पॉकेट में 1 रुपया नहीं है और कह रही है मिस मैं सोच रही हूँ एक बड़ा सा टेंट लगा दूं और उसमें बहुत सारी लड़कियां बिठा दूं जो मेहंदी लगाए, तो भाई टेंट के पैसे कौन देगा? कौन आपके उसका फाइनेंस बेयर करेगा? अच्छा मिस टेंट के पैसे नहीं है तो ये शादी हॉल वालों ने लिख के लगाया हुआ है दैट इन द मंथ ऑफ रमजान वी गिव फ्री हॉल। तो मिस ये तो हॉल फ्री है तो मैं वहां पे रख लूं? अरे भाई बच्चा जाके देखो, हॉल फ्री तो कह रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा जो यूटिलिटी बिल आएगा उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आप जब देख रहे हो आपको अपनी उसमें फिजिबिलिटी में लाजमी चेक करना पड़ेगा कि आप उसको किस तरीके से कंडक्ट करोगे, किस तरीके से आप अपनी बिजनेस को लेके चलोगे। इन चारों पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आयशा, आयशा इज इन द क्लास? आयशा इमरान, आयशा इमरान, आर यू इन द क्लास नाउ? Yes, ma'am. Aisha beta add your enrollment number, you was in waiting from a long time लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आप चेंज ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। So I request you to add your enrollment number also because I don't know who you are until and unless आपका enrollment number आए। ओके, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा उसके बाद यू विल सी दैट इफ ऑल 4 आर ओके तो फिर आप यस करके बिस्मिल्लाह नाउ प्रोसीड फॉर योर बिजनेस प्लान। इफ देर इज एनी नो, सिंगल नो, तो भी थिंक अबाउट इट। एंड इफ नो इज इन मोर एरिया फिर तो बच्चा बहुत रेड सिग्नल है, देन डू नॉट गो फॉर दैट बिजनेस। इफ यू थिंक दैट कि आपको बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंसी है, देन आई हाईली 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 रिकमेंड के यहीं पे ड्रॉप कर जाओ, ठीक है। अच्छा नाउ यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ बीएस इंग्लिश एंड मैथ्स, सो दिस थिंग इज नॉट सो मैंडेटरी फॉर यू। हाँ भाई आपके दिमाग में आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स है करना है, बट व्हेन आई गिव ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स जो आते हैं कि मैडम हमें बताएं हमने बिजनेस करना है हमारा ये आइडिया है, तो उसमें हम बैठ के पूरे एक एक चीज को एनालिसिस करते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस है तो उसकी मार्केट नीड क्या है, देन इंडस्ट्री है, टारगेट मार्केट कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन अगर बना रहे हैं तो क्या क्या चीजें।
एंड हियर इज द फिगर टेबल 3.1। ये पूरा आपको बताती है पार्ट 1 प्रोडक्ट एंड सर्विस फिजिबिलिटी। तो आप देखते हो कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्या डिजायर है, डिमांड है मार्केट में, इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्टिवनेस है, टारगेट मार्केट की तरफ अट्रैक्टिवनेस है। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी यू विल सी टू टाइप, मैनेजमेंट देखते हो और रिसोर्स की सफिशिएंसी देखते हो। आपके पास मैनेजमेंट है, आप कहते हो नहीं 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 हमें जरूरत नहीं, मैं तो अकेले ही काम कर लूंगा। अच्छा अकेले काम करोगे तो फिर कैसे करोगे? कर लूंगा मैं, किसी को बोल के ये चीज लगवा लूंगा, ये चीज करवा लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, फिर आपका वो बहुत बड़ा फेलियर है। आपके पास रिसोर्सेस है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल फातिमा सेज दैट मिस आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट हेयर ऑयल बिजनेस। अच्छा भाई हेयर ऑयल बिजनेस, तो हेयर ऑयल में तुम्हारे पास ऑयल कहाँ से आएगा? बनाना आता है? नहीं, वो हमारे मोहल्ले में एक आंटी है वो बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा चलो आंटी से तुम बनवा रहे हो, फिर पैकिंग कैसे करोगे? पैकिंग थैली में डाल के दे दो भाई, थैली में डाल के कौन तुमसे हेयर ऑयल लेगा? ये भी तो सोचो। इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ ब्रांड, प्रॉपर ब्रांड होना चाहिए ना। हाँ मिस क्या तो सही नहीं है, अब क्या करूं? गो एंड बाय सम बॉटल्स। अच्छा मिस बॉटल तो बहुत महंगी पड़ रही है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब देखिए हम ये पार्ट 4 पर आ गए। जब आपने रिसोर्सेज देखी सफिशिएंट नहीं थी, तो फिर आप पार्ट 4 पर आए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखने के लिए, दैट डू यू हैव दैट मच मनी और नॉट। एक बोतल खरीद के तो आप, वन सिंगल बॉटल से तो यू कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस, एटलीस्ट यू नीड सम 10-20 बॉटल्स टू स्टार्ट द बिजनेस। सो आपको फिर देखना पड़ेगा टोटल स्टार्टअप कैश नीडेड कितना है, आपको कितना काम करना है, कितना चाहिए होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एनी अदर सिमिलर बिजनेस। अगर आप देख रहे हो कि भाई हेयर ऑयल है, आपका चल रहा है नहीं चल रहा है, यू जस्ट सी, यू स्टडी द हेयर ऑयल ऑफ सईद गनी, वो कितने बेच रहा है महीने में, तो उसकी बॉटल कैसी है, उसकी पैकिंग कैसी है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर ब्रांड इज योर कॉम्पिटेटर। ठीक है, अगर आप ऑयल हेयर ऑयल सेल कर रहे हो, if someone is good in beauty and other product, might be she sells serum. There is a student in your class who is into the आटा business। उसको मैंने कहा था कि अपनी ब्रांड बनाओ, अपने आटा को एक्सटेंड करो, अपनी ब्रांचेस बनाओ। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जब वो एक्सपैंड करेगा तो भी वो देखेगा कि उसके पास फाइनेंशियल कितना है। अगर आटे का बिजनेस कोई आगे लेके चल रहा है तो उसको फिर देखना पड़ेगा कि फलाना चक्की आटा, फलानी ब्रांड का आटा, ठीक है, वो कितना किस है, ओवरऑल फाइनेंस आपका कितना मतलब रिक्वायर्ड है डिफरेंट वेंचर्स को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल पूरा फिजिबिलिटी एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, दिस टॉपिक, दिस स्टडी आई री शेयर विथ यू। आपको याद होगा वी डिस्कस अ लॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक इन द क्लास। जब मैंने आपको कहा था कि हाँ भाई हम चांद पे जाएं, ये करें वो करें, एंड इन आवर लास्ट क्लास यू रिमेंबर, हमारे पास क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा था मैं रेस्टोरेंट ओपन करूंगी, तो उसका मैंने आपको कहा भी था कि 2 कैटेगरीज होती हैं। वन इज द पर्सन जो बिल्कुल ही डर के, ओ इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, कर दिया, वो कर दिया, और फिर फौरन से कहेगा कि नहीं मैं तो बिजनेस नहीं करूंगा। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव अनदर टाइप ऑफ पर्सन जो ये कहेगा कि यार मिस ने मुझे चैलेंज कर दिया है, अब तो आई विल स्टार्ट। सो ऑल दीज थिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस आप चेक करते हो। अच्छा उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट टेस्ट भी होता है। अच्छा राइट नाउ वी सम ऑफ द आइडियाज ऑफ योर क्लास वो हमारे पास आए थे। रमजान था तो हमने थोड़ा हल्का रखा, वरना आई यूजुअली गिव माय स्टूडेंट एन एक्टिविटी टू गो एंड आस्क पीपल ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, और उसमें लाइक स्टूडेंट गो टू द आईपीपी एंड पब्लिक हेल्थ एंड इवन टू द मीडिया स्टूडेंट, इवन टू द बिजनेस स्टूडेंट, इवन टू द engineering department, computer science, anyone, and you'll discuss that I am starting a business of this product or this service. ठीक है, does it make sense, is it reasonable, do you think that it can gather different customer, is this business is good for environment, does it solve the problem, etc etc। तो these are the questions which you ask other people, तो फिर आपको लगता है हाँ भाई बिजनेस के बारे में लोग आंसर तो करेंगे। एंड देन कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट के आप अपना
लोगों को बताओ कि भाई मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। लाइक इफ यू आस्क समवन अबाउट फूड पांडा तो वो पलट के कहेगा ये कौन सी जरूरत है भाई, रास्ते से जाते हुए हम खुद ही लेकर आ जाए, हमें फूड पांडा की क्या जरूरत है। आते हुए 2 नान हम खुद ही ले आए, आते हुए 1 सालन हम खुद ही ले आए। बट कहीं ना कहीं तो जरूरत थी ना, तभी तो फूड पांडा भी आया। ठीक है, अब कोई घर में बैठा है, उसको चीज चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो फूड पांडा के थ्रू मंगवा सकता है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट। उसमें ऐड क्या किया फूड पांडा ने, होम शेफ। अच्छा, होम शेफ पर अगर ऐड हो गए हैं तो हम तो घर में खुद बना ले। ठीक है, अब जब आप घर में खुद बना रहे हैं तो फिर होम शेफ की क्या जरूरत है, फिर होम शेफ की भी जरूरत है क्योंकि आपको हाइजीनिक फूड चाहिए, घर का फूड चाहिए, स्पाइसी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फूड पांडा ने ये सारा चीजें देखी होंगी कि टीम को बताया होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम बिजनेस किस चीज का करना चाह रहे हैं, इससे हमारे आगे बेनिफिट्स क्या होंगे, व्हाट आर दोज इश्यूज विच वी विल सॉल्व। तो वो सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट टेस्ट में आते हैं। एंड दीज आर द few 4 questions as per your book. ठीक है, the 3 things you like about the product or service, idea, description in the statement। जो भी आपने स्टेटमेंट दिया, जब भी किसी से सर्वे किया, पूछा, तो उससे आप पूछते हो कि क्या 3 चीजें पसंद आई। अच्छा बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी यूजुअली आस्क पीपल दैट खा के बताओ कैसा है, बुरा तो नहीं लग रहा। वेन यू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बुरा तो नहीं लग रहा, तो लोग उसमें सबसे पहले बुराई ढूंढने लगते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द नेगेटिव क्वेश्चन, इट्स बेटर टू आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन। देखो मैंने ये चीज बनाई है, मेरे हिसाब से मीठा और फलाना ये वो सब परफेक्ट है, प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट है, तुम्हें भी सब ठीक लग रहा है। एंड इफ यू ऑलरेडी इंजॉक्ट दिस थिंग कि एवरीथिंग इज गुड 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 गुड, तो वो फिर उसके गुड 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 चीजों को देख के रिव्यू करेगा। ठीक है, दिस इज माई ड्रेस, आई एम वेयरिंग इट। अब ड्रेस आई एम वेयरिंग एंड ऑन ऑल ऑफ सडन यू से अच्छा थोड़ा सा ऑरेंज है, ब्राइट है, लेकिन चल जाएगा, तो वो एकदम से उसका नेगेटिव देख करके हाँ ऑरेंज है, ब्राइट है, अच्छा तुम कह रही हो तो चल जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू से दैट सी द कलर इज सो ब्राइट एंड द वेदर इज सो गुड, ये इसके साथ बिल्कुल मैच करेगा, एंड इसमें मैंने ब्राइट कलर इसलिए रखे हैं क्योंकि ईद पे हमारी हैप्पीनेस की वाइब है, सो आई एम वेयरिंग इट, तो सामने वाला कहेगा हाँ लग तो अच्छा रहा है। यू गेटिंग इट? तो आपने सामने वाले को 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट द प्रोडक्ट, आपने पहला स्टेटमेंट ही ये बोलना है, लाइक अबाउट द प्रोडक्ट। आपका रिव्यू क्या है ये बाद में बोलना, पहले आप उससे पूछेंगे लाइक अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, 3 सजेशंस। ठीक है, टू फॉर मेकिंग आइडिया बेटर, यानी आपको लग रहा है अच्छा, आप कह रहे हो ना अच्छा, तो इसको और मजीद में कैसे अच्छा करूं। अगर आप ये कहेंगे कि इसमें 3 पॉइंट बताओ कि इसमें बुरा क्या है, तो बच्चा 3 तो क्या 300 बुराइयां निकाल के सामने वाले बैठ जाएगा। डू यू थिंक द आइडिया इज फिजिबल, ऑब्वियसली वो आपको बताएगा यस नो, हाँ अच्छा तो है लेकिन लग नहीं रहा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, अच्छा ये रीजन है। ठीक है, प्रोवाइड एन एडिशनल कमेंट और सजेशन यू थिंक माइट बी हेल्पफुल, यानी आपने मेरे इसमें देखा, आपको अच्छा लगा, अब आप मुझे बताएं इसको कैसे लेके चलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो these are the things which we see in feasibility। बाकी ये सारी उसी की डिटेल है। ठीक है, कि किस तरह करते हैं, बाइंग बायर कौन सा होता है, और लाइब्रेरी में भी जाके आप रिसर्च करते हैं इंटरनेट पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ तक आपकी सारी बेसिक फिजिबिलिटी चीजें होती है। मार्केट एंड इंडस्ट्री के ट्रेंड आप चेक करते हो, हु इज योर बायर, हु इज योर कस्टमर। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जाम्पल इसमें आई वुड लाइक टू ऐड विथ यू। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की फिजिबिलिटी और ये सब अभी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, कौन बंदे हैं, कौन काम करेंगे। ना इफ आई आस्क वन क्वेश्चन फिजिबिलिटी अबाउट द brand, do you remember that there is a brand initiated for the kids? आपने दरवाजा खोला और आप उस दुकान के अंदर गए, यू नेम इट एंड यू गेट इट, सब कुछ बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, इवन दी स्टेशनरी, इवन दी cots of newborn, if even the dress of newborn, if the cupboard, if you see, if you even find the accessories of kids, different sports item, etc etc, सब कुछ बच्चों से related। Name of the brand? What is the name of the brand?
मिस बच्चा पार्टी। एक्सीलेंट मारिया, इट्स बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी से पहले क्या कोई दुकान नहीं थी? आई रिमेम्बर आई यूज टू गो टू तारिक रोड टू बाय थिंग्स फॉर माय सिबलिंग्स, और उसमें हम जब जाते थे तो हमें तारिक रोड पे बहुत सारी शॉप होती थी जहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलते थे, फिर एक दुकान थी जूते मिलते थे, एक दुकान थी खिलौने मिलते थे। लेकिन बच्चा पार्टी ने ब्रिंग एवरीथिंग अंडर वन रूफ कर दिया, ठीक है। देन देयर इज अनदर ब्रांड, क्या कॉम्पिटिटर कोई तो होगा ना, कॉम्पिटिटर भी बच्चा पार्टी का, कौन सा है, कोई बताएगा? इज देयर एनी अदर ब्रांड जो इस तरीके से कुछ कर रही है? इज देयर एनी अदर ब्रांड? अली भाई, is there any other brand? No. Okay. Zubaida's is another brand जो इस तरीके से किड्स का पूरा सेटअप देता था। जुबैदास पे आप जाएं तो उसमें आपको बच्चों की सारी वैरायटी अलग से मिलती थी। बट उसने बच्चा पार्टी के जैसी ऑडियंस क्यों नहीं कैप्चर की? क्योंकि जुबैदास के नाम के साथ था जुबैदास मदर। अब उसमें सारे मदर और बच्चे रिलेटेड चीजें थे, फिर उसमें फर्दर प्रोडक्ट्स ऐड की गई, तो वो आपको एक अलग तरीके से एक ब्रांड जो है वो मिल रही है, ठीक है। बट बच्चा पार्टी ने पूरा कैप्चर किया, तो उसने जब फिजिबिलिटी एनालिसिस किया होगा उसको पता चल गया होगा मार्केट नीड है, अपॉर्चुनिटी है, लोगों को जगह में इस तरीके की एक अंडर वन रूफ सारी चीजें चाहिए। देन देयर इज अनदर थिंग ऑल्सो, एक ही दरवाजे में एंटर हुए, ठंडा माहौल, इफ किड्स आर विथ यू तो आपको आराम से इस तरह उसकी सेटअप है कि आप स्ट्रॉलर लेके भी अंदर चले जाओ, बच्चे होंगे उसमें अंदर चले जाएंगे हैप्पी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऑल दोज हु आर प्रेजेंट राइट नाउ, आपने सबने चैट में अपना एनरोलमेंट नंबर और अटेंडेंस मेंशन की है, नेम एंड एनरोलमेंट नंबर। नेम एनरोलमेंट नंबर अगर आपने नहीं लिखा तो आपको फर्स्ट क्लास की अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। क्विकली मार्क योर अटेंडेंस। Name, enrollment number of this first session. Quick, quick, quick. Our class will be end in few seconds. 10 minute का break होगा because it's that break is by Zoom. उसके बाद हमने वापस से इसी ID से log in हो जाना है, ठीक है। All those who are here without your enrollment number, please, 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 आप अपने enrollment number के बगैर बिल्कुल भी आपकी एंट्री